Okay. So, hello, students. Welcome to Ayurveda Studies. We are studying Sanskrit. That is one of the chapter of our first year professional, है ना, BMS course. Okay. So, Sanskrit and history of Ayurveda in English. We are starting here in English, right? If anybody wants it in Hindi, so Hindi is also available there, but here we are just on focusing on English, and that is for obvious reasons, right? Okay, so let's start our chapter number one, that is Sanskrit Varnanam Parichay, right? We are going to what, like, why you guys should watch these lectures only, because we are going to cover everything according to NCISM syllabus, right? And plus, I'm going to share every topics that are important for you, right? So we will be covering all the important topics and how the questions are asking from the topics that are also going to be covered here, and only in one lecture. So stay like till the end, okay, and stay focused. Okay, it won't be bothering you anymore, right? Okay, let's start with the enthusiasm, right? And the energy and the smile. Okay? Okay, let's start. First chapter is Sanskrit Varnanam Parichay. Okay. So Sanskrit Varnanam Parichay, according to NCSM syllabus, what are the given topics are Maheshwar Sutrani, ठीक है? हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आपको जो है अगर इंग्लिश में जो है वो नाम नहीं पढ़ना है तो हिंदी में जो है वो नाम पढ़ने आ जाए, ठीक है? ओके, माहेश्वर सूत्राणि, उच्चारण स्थानानि, बाह्य प्रयत्नानि और आभ्यंतर प्रयत्नानि. These are the four topics. ठीक है, we have to study in chapter number one, right? Let's start with the introduction. ठीक है, so these are mainly two types of Sanskrit alphabets. ठीक है, there are mainly two types of Sanskrit alphabets. तो Sanskrit alphabets के two types हैं, ठीक है? What are they? Vowels and the consonants. ठीक है, vowels and the consonants. Yeah, plus these are the handwritten notes which are actually beneficial for you. ठीक है, these are not printed, not AI used, but the handwritten notes which are like really authentic, है ना, which are going to help you for real, right? Okay, let's start. Let's move. Then the definition, right? Vowels. You all know about vowels, and now I don't have to explain you about vowels. What are the vowels? It is known as swara in Sanskrit, right? Or in Hindi also. These are known as swar. Okay. The definition: alphabets pronouncing without use of any other words. Likewise, any other words. What it means by any other words. So here you can see in consonants, because we have to see the opposite component to understand one, right? Here you can see in Vyanjana or consonants. Let me tell you this one, like when you pronounce ka, right? When you pronounce ka, that means it has inbuilt ka with halantyam. This matra, this arrow is known as halantyam plus a inbuilt, right? When you pronounce any of the consonant, when you pronounce any of the consonant, there is an inbuilt a or swara in that. This is a and swara in that, right? When you pronounce any of the consonant. So, but what about the swar? What about the vowels? Vowels doesn't have any of the other words for their pronunciation. Like sh- uh, types of consonants are there. Short, that is risva. What are risva? Like a, e, u, ril, re. ठीक है, री, रे. Okay, so hope you are guessing it right for pronunciation. A, e, u, ril, re, right? Then long types, that is known as dirgha, है ना? You have to learn the Sanskrit terminology also, like hrasva and dirgha, right? So hrasva and dirgha: a, e, u, ril, a, au, o, o and au, right? These are long.
क्या मतलब होता है कि लॉन्ग, क्या मैं हिंदी में बोलना चाहूंगी ताकि आपको एकदम जो है वो क्योंकि आप लिख तो लेंगे ही, ठीक है, अगर मैं हिंदी में नहीं बोलूंगी तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आ जाए, लेकिन आप हिंदी में समझाऊंगी तो आप इंग्लिश में तो लिख ही लेंगे क्योंकि नोट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, राइट। ओके, तो एक बार मैं इसे हिंदी में समझाती हूँ। तो टाइप्स में क्या बोला हुआ है कि ऋस्व और दीर्घ। ऋस्व का मतलब क्या होता है, जो अ ई उ रेल री होता है, और इसकी ही हम बोलते हैं बड़ी की मात्रा बताओ, है ना, बड़ी मात्रा। तो बड़ी अ की मात्रा क्या हो जाती है, आ हो जाती है। ई की मात्रा क्या हो जाती है, तो जो है वो बड़ी मात्रा हो जाती है, मतलब क्या उसके ऊपर जो है वो ऐसे लग जाता है, राइट। ऊ के लिए भी बड़ा ऊ जो है वो इस तरीके से होता है, दैट इज नोन एज दीर्घ, राइट। संस्कृत में उसे हम ह्रस्व और दीर्घ बोलेंगे, राइट। देन कम्स प्रोलॉन्ग्ड यानी कि प्लूत, वॉवल्स ऑफ थ्री मात्रा, ठीक है। इन तीनों में जो है वो दो ये मात्रा हो गई, इनके तीन मात्रा, मतलब कि क्या है, इनको लंबा प्रोनाउंसिएशन, जैसे ओम, ठीक है। इन दिस ओ जो है वो क्या हो जाएगा, वो प्लूत हो जाएगा, ठीक है। होप समझ में आया हो, ठीक है। इतना यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंस इसका नहीं है, लेकिन आपको समझ में जरूर आना चाहिए। कहाँ से इंपॉर्टेंट चालू होता है मैं आपको बताऊं। नेक्स्ट इज नेजलाइज। नेजलाइज यानी कि क्या, उसको अनुनासिक बोलते हैं। व्हाट इज नेजलाइज, अनुनासिक। learn and remember these terminologies also, right? Nasalized, अनुनासिक। अनुनासिक means sounds produced by expelling air through the nose, e, u, etc., right? And non nasalized, मतलब nasalized में क्या, you have to use your nose, like air passes through the nose, है ना, then you can pronounce certain words, certain alphabets. Unanunasik, sounds produced only with the mouth, ठीक है, इसमें जो है वो nose की help नहीं लेनी पड़ती है, तो only with the mouth, that is known as unanunasik, right? Okay. Then comes consonants. Consonants, you all know. Definition: the sounds that helps in speaking with the vowels. ठीक है। जो व्यंजन होते हैं वो हमेशा किसकी हेल्प से प्रोनाउंस होते हैं, वो वॉवल्स की हेल्प से प्रोनाउंस होता है, राइट। कैटेगरीज में क्या आ जाएगा इसका, तो स्टॉप कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपको याद रखना है क्योंकि ये संस्कृत पेपर में पूछा जाएगा, और यू ऑल नो दैट योर पेपर विल बी in Sanskrit and or in English, right? There is no such type of Hindi or nothing in the paper. क च ट त प, वर्ग, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, व्हाट इज क वर्ग, तो क ख ग घ अंग, यू नो ऑल दैट, राइट। फिर च छ ज झ, तो च वर्ग, फिर ट ठ ड ढ तो ट वर्ग, ठीक है। वो जो लाइन होती है उसी को यहाँ पर ट वर्ग में जो है वो रिप्रेजेंट करती है, राइट। देन कम्स सेमी वोवल्स। सेमी वोवल्स यानी कि अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या आ जाएगा, य र ल व, और आ जाएगा उष्मस्थ व्यंजन, ठीक है। क ख ग घ बड़ा होगा तो पता होगा, श श स ह, ठीक है। पहले आपका ये क ख ग घ में ये वाली पूरी पूरी लाइन आ जाती है, क वाली च वाली, और उसके बाद आता है य र ल व, फिर श श स ह। अब व्हाट इज अंतस्थ, व्हाट इज सेमी वोवल्स एंड व्हाट इज सिबिलियंस, ठीक है, सिबिलेंट, सॉरी। तो ये देखो, इन दोनों को प्रोनाउंस करो, इन दोनों को प्रोनाउंस करो, ठीक है। विच कंज्यूम्स लाइक मोर एनर्जी टू इट, विच कंज्यूम्स मोर एनर्जी, विच नीड्स मोर एनर्जी, तो ऑब्वियसली विल गो विद द श श स ह, और यर लव, श श स ह, राइट। मोर एयर इज पास्ड थ्रू द माउथ, so that's why it is known as ushma vyanjan, right, and then it is antas vyanjan. Okay, here it is also nasalized and non nasalized, yeah, ayog vaha. Nasalized, what are the nasalized? Anga, iyananam. When you pronouncing that, you will feel the vibrations on your nose, right? अयोगवाह, यानी अयोगवाह में क्या क्या आ जाएगा, अनुस्वार एंड विसर्ग। व्हाट इज अनुस्वार, जो आप ऐसे जैसे मान लो अंकिता, तो अंकिता लिखते हैं तो ऊपर जो अंक का जो ऐसे बिंदी लगाते हैं वो अनुस्वार बोलते हैं उसे। और विसर्ग यानी कि क्या, ये जो होता है वो विसर्ग होता है, राइट, ये विसर्ग होता है। ओके, मेजर पॉइंट्स, अ टोटल ऑफ 48 कैटेगरीज आर क्लासिफाइड इन संस्कृत, ठीक है। और टोटल ऑफ 48 कैटेगरीज, ठीक है। 13 वॉवल्स होते हैं, 33 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, ठीक है। इनसे टोटल जो हमने अभी ये पढ़ा, तो ये कितने हो जाते हैं, टोटल 48 हो जाता है, ठीक है। ओके, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कैसे होता है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज बेस्ड ऑन एफर्ट्स, ठीक है, प्रयत्न एंड प्लेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण स्थान। मतलब कि क्या, जब आप प्रोनाउंस करते हैं कुछ भी वर्ड्स,
तो उसके लिए आप कुछ एक एफर्ट्स कर रहे होते कि नहीं, आपकी जो माउथ है उसका मूवमेंट हो रहा होता है, राइट। और जो है वो सर्टेन वर्ड्स जो है वो अलग अलग जगह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जैसे कि कंठ से प्रोड्यूस हो रहे होता है, कोई विद द हेल्प ऑफ टंग प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिप्स. So these such types of words which are pronounced from the different parts of the oral cavity, right? Then Maheshwar Sutra. What is Maheshwar Sutra? ठीक है. The classification is mentioned 14 types, systematically called Maheshwar Sutra. Classification of mentioned 14 types. ठीक है, मतलब कि क्या ये जो कह सकते हैं सूत्र होते हैं वो 14 टाइप्स के सूत्र होते हैं, जिनको माहेश्वरी सूत्र बोला हुआ है. और प्रत्याहार बोलते हैं, आर यूज टू शो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये प्रत्याहार मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है. Avoid this for now. I'll tell you about pratyahar in further, in just after 2 to 3 slides. माहेश्वर आप सूत्र आपको क्या करना है यहाँ पर दिया हुआ देखो. माहेश्वर सूत्राणी. माहेश्वर सूत्राणी, व्हाट इज माहेश्वर सूत्राणी? माहेश्वर सूत्र आर बेस्ड ऑन द संस्कृत ग्रामर. दीज आर 14 सूत्रा. कितने हैं? 14 सूत्रा. विच ऑल संस्कृत वर्णास आर इंक्लूडेड, जिसमें सभी कुछ है, सारे अल्फाबेट्स हैं. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? 14 सूत्र. मतलब क्या? ये एक सूत्र, ये दो सूत्र, ये तीसरा सूत्र, ये चौथा सूत्र. लाइकवाइज देर आर 14 सूत्रास आर देर, राइट. लाइकवाइज देर आर 14 सूत्रास आर देर. तो उसको हम बोले, इसमें क्या हो जाता है, सभी जो भी अल्फाबेट्स है संस्कृत में जितने भी यूज होते हैं बोलने के लिए, जैसे हम क से ज्ञ तक बोलते हैं, तो क से ज्ञ तक जितने वर्ड्स यूज होते हैं उतने ही यूज करते हैं हम, है ना, और तो कुछ बोलते नहीं है. तो वैसे ही इसमें भी संस्कृत में जितने बोलने होते हैं वो 40 सूत्र में आ जाता है. दीज आर ऑल्सो नोन एज शिव सूत्र. These are also known as Shiva Sutra. It is believed that these sutras are originated from the Shiva's डमरू. ठीक है, जब ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने डमरू बजाया हुआ था, that at the time the sounds produced from his डमरू are converted into these sutra. ठीक है, अगर आप इसको तेज तेज पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि डमरू की आवाज ही है, ऐसा हम मानते हैं. ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना चाहते हैं तो आप जरूर सर्च करके देख सकते हैं. In these 14 sutras, 42 pratyahar can be made. These are helpful for knowing the meaning of sutra. Now, what is pratyahar? Let's see. हाँ, here it comes. अण. ठीक है, अण. Now let me just tell you verbally. ठीक है, what is सूत्र? प्रत्याहार. ठीक है, ये सूत्र आपको समझ में आ गया. मैं इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार कर देती हूँ. अ ई ऊण, रिल री क, ए ओंग, ऐ औच, ह य व र ट, लण, य मंगणनम, यमंगणनम, झ भ य, घ ढ ध श, ज ब गड़ द श. ये वाला श और ये वाले श में फर्क है, उसका हम देखेंगे. ये जो है वो इस चैप्टर के एंड तक आपको पता चल जाएगा इनमें क्या फर्क है. ठीक है. ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, श श स र, ह ल. ठीक है, होप यू आर गेटिंग इट करेक्ट फॉर द प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, अब प्रत्याहार देख लेते हैं. अब मान लो मुझे कि है ना, मुझे इस सूत्र से लेकर के ये 4 लाइन मुझे बतानी है. ठीक है, या चलो मान लो 5 लाइन बतानी है. ठीक है, अब मैं ऐसा करूंगी क्या कि आपको मैं ना, अगर मुझे आपको बताना है कि इतने सारे वर्ड्स जहां पर इंक्लूड होते हैं तो वहां पर हम ये काम करने वाले हैं. ठीक है, इतने वर्ड्स हमें इंक्लूड करने हैं, तो मैं आपको कैसे बताऊंगी? ये पूरा पढ़ पढ़ के बताऊंगी? नहीं, मैं आपको सीधा बोल दूंगी. स्टार्टिंग वाला वर्ड अ, एंडिंग वाला वर्ड ट. मैं आपको बोल दूंगी अट प्रत्याहार का यूज करना है. मैं बोल दूंगी अट प्रत्याहार का, अट प्रत्याहार, प्रत्याहार का पी लिखा हुआ है, का यूज करना है. तो आपको समझ जाना है कि अच्छा अ यहाँ पर है, ट यहाँ पर है, उनके बीच में जो भी आता है वो उनका हमें यूज करना है. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो इसीलिए संस्कृत में भी अगर उन्होंने कुछ है, उनको कुछ डिस्क्राइब करना है तो उन्होंने क्या कर दिया कि प्रत्याहार बना दिए. वो आपको बोलेंगे अच प्रत्याहार.
तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अ से च तक की लाइन जो है वो अच प्रत्याहार में आती है। ठीक है। और उसमें जितने भी वर्ण हैं तो ये हमें यूज करने हैं अच प्रत्याहार जहां पर भी मेंशन हो। ठीक है। तो सी हियर अण। अण मतलब कि क्या, अ ई उ ण जो है वो उसमें इंक्लूड होता है। अक। अक में मतलब अ ई उ रिल री क। ठीक है। तो इसमें उतने अ से क तक के जितने भी हैं वर्ण वो यूज होते हैं। फिर उसके बाद अच। अच में अ ई उ रिल री ए औ एच औच। ठीक है। तो इतने सारे वर्ड्स जो है वो अच में यूज होते हैं। ना व्हाट इज ये अच जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज दिस इंक्लूड्स ऑल द वॉवल्स। दिस इंक्लूड्स ऑल द वॉवल्स। Here four lines, one, two, three, four. These four lines includes all the vowels. ठीक है। तो ये बार बार जो है वो आपको यूज आना आएगा। ठीक है कि क्या, अच प्रत्याहार अच प्रत्याहार। क्यों अच प्रत्याहार? क्योंकि वहां पर जो है वो आपको सारे स्वर जो है मतलब वॉवल्स जो है वो आपको आ जाएंगे। राइट। गिव मी अ सेकेंड। ओके। नाउ अठ है ना, तो ये सारे जो है वो प्रत्याहार यहाँ पर बता हुए अठ अण अम अश। ठीक है। अल अश इस तरीके के इन्होंने प्रत्यय दिए रखे हैं। रूल्स भी होते हैं सर्टेन, वो हम देखते हैं। देखो मेजर पॉइंट्स में क्या याद रखना है हमें। प्रत्याहार, प्रत्याहार मेड अप फ्रॉम दी सूत्रा। प्रत्याहार इज शॉर्ट और ब्रीफ ऑफ वर्णास। फॉर एग्जाम्पल अच प्रत्याहार includes all the vowels, includes all the vowels, right? It संज्ञा, every end word of sutra is called as it संज्ञा. Now here you can observe a word like every, wait, yeah, like every end word here, end word, you can see some dots like line, है ना, कुछ डॉट और लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर। एग्जैक्टली, दैट इज नोन एज इत संज्ञा। दैट इज नोन एज इत संज्ञा, है ना। क्यों इत संज्ञा बोलते हैं? क्योंकि ये एंड वर्ड्स हैं। ठीक है। तो ये एंड वर्ड्स हैं, उनको हमें क्या बोला हुआ है? इत संज्ञा बोला हुआ है। राइट। एवरी एंड वर्ड इज सूत्र इज कॉल्ड इत संज्ञा। दीज वर्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रत्याहार। ठीक है। उच्चारण क्या होता है? हैव टू यूज हलंत्यम आफ्टर यूजिंग दीज सूत्र। इस जो लाइन को, लाइन जो है वो उसको क्या, ये जो लाइन दी हुई है सबके अंत में, इसको क्या बोलते हैं? हलंत्यम। ठीक है। तो हलंत्यम जो है वो जहां पर भी हो उसको हम इत संज्ञा बोलेंगे। ठीक है। आफ्टर यूजिंग दिस सूत्र। ठीक है। यूज क्या है? यूजेस ऑफ माहेश्वरी सूत्र टू अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर रूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर। ये संस्कृत का बेस है। जैसे आप क ख ग घ नहीं पढ़ोगे तो उससे पूरी हिंदी कैसे समझ आएगी? तो वैसे ये नहीं पढ़ोगे तो कैसे समझ आएगा? राइट। फिर बाय क्रिएटिंग प्रत्याहार द रूल्स ऑफ ग्रामर कैन बी रिटन इन कंसाइज मैनर। ठीक है। तो प्रत्याहार अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको क्या है, उसको कंसाइज लिखना आपको आ जाएगा। राइट। प्रत्याहार। ठीक है। प्रत्याहार में अब क्या आता है? देखो, प्रत्याहार इज द मेजर पार्ट ऑफ द संस्कृत ग्रामर विच इज यूजफुल टू डिस्क्राइब संस्कृत वर्ण इन ब्रीफ। ठीक है। जो संस्कृत के वर्ण है वो एक ब्रीफ में जो है वो आपको समझने में प्रत्याहार काम करते हैं। ठीक है। डेफिनेशन, द मीनिंग ऑफ प्रत्याहार इज टू रिटर्न और इन ब्रीफ। इसका मतलब ही क्या होता है कि ब्रीफ में लिखना और टू रिटर्न। ब्रीफ में क्या करना है आपको? जो आपके जो श्लोक दिए हुए हैं, 14 माहेश्वर सूत्र दिए हुए हैं, उसको आपको ब्रीफ में दिखाना है। तो आपको क्या करना है? प्रत्याहार यूज करना है। इन टर्म्स ऑफ ग्रामर इट मीन्स टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ स्मॉल नेम्स, है ना। ग्रामर डिनोट अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या हुआ है भाई? एक सूत्र हुआ, दो सूत्र हुआ, मुझे चार पांच सूत्र एक में ही करना है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है वो, तो उनको स्मॉल नेम्स में मुझे दिखाना है। नाउ हाउ टू यू मेक प्रत्याहार? तो आपको कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उसी तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे? स्टार्टिंग आपको किससे करनी है ना। अब प्रत्याहार में तो पता चल गया कि दो वर्ड बताने हैं आपको, स्टार्टिंग के और एंडिंग के। ठीक है।
तो स्टार्टिंग के द फर्स्ट वर्ण इज नीडेड टू दैट दैट वर्ण समूह टू मेक प्रत्याहार। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, फर्स्ट वर्ण वर्ण जो होगा वो हमेशा स्टार्टिंग का ही होगा, है ना। ये जो है वो हमेशा फर्स्ट जो है वो स्टार्टिंग का ही वर्ड होगा अगर आपको प्रत्याहार लिखना है तो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्रामर वगैरह हो गया। एंडिंग आफ्टर दैट एड एट एंड वर्ण इत संज्ञा टू दैट वर्ण समूह। व्हाट इज इत संज्ञा, मैंने बताया जो सबसे लास्ट जिसमें हलंत्यम लगा हुआ होता है सूत्र के, ठीक है, तो उसको इत संज्ञा बोलते हैं। तो आपको एंड किस पे करना है, इत संज्ञा पर ही करना है। जैसे कि यहाँ पर अच बोला हुआ है, यहाँ पर अच बोला हुआ है ना, तो अच बोला हुआ है तो क्या मतलब होता है अच बोला हुआ है तो अच बोला हुआ का क्या मतलब होता है कि अ आ जाएगा और च आ जाएगा। ठीक है, तो ये च क्या है, ये लास्ट में आता है, तो ये क्या हो गया, इत संज्ञा हो गया। ठीक है, और फर्स्ट जो है वो फर्स्ट बताना है आपको। ठीक है, इजी एग्जाम्पल देखो, एच दिया हुआ है, दिस इज द प्रत्याहार ऑफ ऑल द वॉवल्स, है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद कर लेना। स्टार्टिंग और माहेश्वर सूत्र भी आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये जो है वो 5 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, संज्ञा प्रकरण, तो उसमें से एमसीक्यू आपको पूछा जाता है। स्टार्टिंग विद अ एंड एंड्स विद द इत संज्ञा च। ठीक है, तो एंड्स विद व्हाट, इत संज्ञा च से इसको एंड किया गया है। हल क्या होता है, दिस प्रत्याहार इंक्लूड्स ऑल द कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, और स्टार्टिंग विद ह एंड एंड विद द इत संज्ञा ल। तो ये हल प्रत्याहार भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सोनेंट्स जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हल में क्या आ जाएगा, सारे कॉन्सोनेंट्स जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे। मेजर पॉइंट्स में क्या होता था, इत वर्ण इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रत्याहार। ठीक है, तो इत वर्ण जो है वो प्रत्याहार में इंक्लूड नहीं होता। मतलब कि क्या, देखो यहाँ पर एग्जांपल्स जो हमने लिखे हुए हैं, देखो जैसे ये अ ई उण अण है, ठीक है, तो इसके बीच में हमने ये ण जो है ना वो एक उसके पहले वाले के साथ ही लिखा हुआ है, उसको अलग से नहीं बताया हुआ है। ठीक है, तो अलग से नहीं बताने का मतलब क्या है, उसको यहाँ पर जब हम उसके वर्ण लिखते हैं तो उसको यहाँ पर अलग से मेंशन जगह नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, मतलब ये क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या करना है, उसमें इंक्लूड नहीं करना है, ऐसा इसमें बताया हुआ है, राइट। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे अच प्रत्याहार, तो वो आपको एंडिंग वाला वर्ड ही करना है, लेकिन उसके बीच में क्या क्या आता है ऐसा लिखने जाओगे तो फिर आपको वहां पर इंक्लूड नहीं करना है। लेट मी जस्ट ड्रिंक अ सिप ऑफ वाटर। ओके, वन प्रत्याहार कैन बी इंक्लूडेड मल्टीपल वर्ण अल्फाबेट्स। ठीक है, एक प्रत्याहार में तुमने देखा कि जैसे अक प्रत्याहार, अब इसमें इतने 4-5 वर्ण यूज हुए हैं। इक प्रत्याहार, इसमें 4 वर्ण हुए, तो ये तो मतलब एक से ज्यादा भी जो है वो शामिल हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रत्याहार तुम्हें अक याद रखना है, ठीक है, यणि प्रत्याहार याद रखना है, ठीक है, फिर मय प्रत्याहार। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो मैं बताऊंगी वो यण होगा और अक होगा। ठीक है, और अच प्रत्याहार भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अच अच प्रत्याहार, उच्चारण स्थान। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम उच्चारण स्थान कर लेंगे। ठीक है, इतना आपको जो है वो बेसिक जो है वो समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, क्योंकि इतने सारे आपको इसमें ना कंपलसरीली क्या करना है, आपको कंपलसरीली ये माहेश्वर सूत्र जो है ना वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये माहेश्वर सूत्र जो है वो आपको नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ऐप पर। तो ये माहेश्वर सूत्र आपको जो है वो याद कर लेना है। ठीक है, कंपलसरीली यू हैव टू लाइक रिमेम्बर, क्योंकि ऑल द ग्रामर्स आर बेस्ड ऑन दिस माहेश्वर सूत्र ओनली, है ना। संस्कृत में जितना भी शॉर्ट हो सकता है ना उतना शॉर्ट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट में ही इनको दिखाया होगा। ठीक है, तो ये माहेश्वर सूत्र आपको कंपलसरी कर लेना है। ठीक है, और मैंने इंपॉर्टेंट प्रत्याहार भी बता दिए। ठीक है, प्रत्याहार क्या होता है ये भी बता दिया कि कहाँ कहाँ पर आपको, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछ लेंगे। ठीक है, तो कैस क्या कि कोई भी प्रत्याहार दे देंगे, है ना, मतलब माहेश्वर सूत्र का फर्स्ट और लास्ट वर्ड कोई भी दे देंगे, उसमें बोलेंगे कि इसमें कितने वर्ण आते हैं, नंबर बताओ, है ना, तो वो आपको याद होना चाहिए, राइट।
तो इस तरीके के एमसीक्यूज और क्वेश्चंस जो है वो इसमें से बन सकते हैं। नेक्स्ट वी विल टेक इज उच्चारण स्थान। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, और फिर हम अच्छे से इसको भी डीप में कर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बाय बाय। ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयुर्वेद स्टडीज। और मैं प्राजक्ता, और हम पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान, विच इज अ टॉपिक ऑफ संस्कृत, है ना। तो इंग्लिश में जो है वो हम इसको जो है वो नोट्स को कवर कर रहे हैं, पूरा इंग्लिश में है, ठीक है। तो नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, और हम आज इस लेक्चर में उच्चारण स्थान पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 का ही टॉपिक कंटिन्यूएशन में, राइट। तो आपको इतना मैंने पहले वाला जो है वो प्रत्याहार समझा दिया था, तो होप आपको वो जो है वो समझ में आया होगा। अब उच्चारण स्थान में देखो, कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान में हमें क्या पढ़ना है कि इन संस्कृत ऑल वर्ण आर प्रोनाउंस्ड बाय फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माउथ कॉल्ड उच्चारण स्थान, राइट। क्या होता है उच्चारण स्थान? ब्रेक डाउन कर लो वर्ड को। उच्चारण, उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन, स्थान यानी कि प्रोनाउंसिएशन करने वाले जो है वो सोर्स, राइट। तो हमारे जो बॉडी में है संस्कृत में, उन्होंने बोला है कि 8 प्लेसेस हैं ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। कौन कौन से? तो जैसे माउथ हो गया, थ्रोट हो गया, ठीक है, फिर टंग, लिप्स, इन जिसकी भी हेल्प लेनी पड़ रही है हमें प्रोनाउंस करने के लिए, उसको उच्चारण स्थान बोल दिया, ठीक है। फ्रॉम विच डिफरेंट वर्ड्स अल्फाबेट्स आर बीइंग प्रोनाउंस्ड, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन भी किया हुआ है कि डिफरेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं और क्या है, राइट। तो देखो, फर्स्ट है वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। और पढ़ो इसे, क्योंकि ये आपको कहीं और कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपने इंग्लिश में ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ठीक है ना, किसी और इसमें, ठीक है। तो ये जो है वो संस्कृत का ही कॉन्सेप्ट है। कंठ, कंठ मतलब कि थ्रोट, ठीक है। तो वर्ड्स प्रोनाउंस फ्रॉम थ्रोट, ठीक है। तो विच इज कंसीडर एज कंठ। जैसे कि अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह, ठीक है। और विसर्ग, विसर्ग मतलब ह, अह ऐसा करता है ना हम, कह। तो अह जो बोलते हैं वो वो भी कंठ से ही प्रोनाउंस होता है। यू गाइज शुड प्रोनाउंस दिस राइट नाउ, ठीक है। जब मैं पढ़ा रही हूँ तभी आप इसे प्रोनाउंस करो, तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ बराबर सही बोल रहे हैं, ठीक है। हाथ रखो वहां पर कंठ, कंठ के पास, ठीक है, थ्रोट के पास, और आप वाइब्रेशंस फील करेंगे। नेक्स्ट इज तालु। तालु मीन्स प्रोनाउंस फ्रॉम द पैलेट, ठीक है, हार्ड पैलेट, ठीक है। तो हार्ड पैलेट का क्या मतलब है? जैसे ई छ छ ज ज, प्रोनाउंस करो इसे, और ऑब्जर्व करो आपकी टंग कहाँ पर टच हो रही है। ई छ छ ज झ, य य श। जो आपकी टंग है ना, उसके साइड साइड का पोर्शन आपके अपर पैलेट, अपर जो हार्ड पैलेट है उसकी साइड साइड पे टच हो रहा है कि नहीं? तो इट इज कंसीडर एज हार्ड पैलेट, ठीक है, तालु। नेक्स्ट इज मूर्धा, ठीक है। व्हाट इज मूर्धा? व्हेन टिप ऑफ टंग टचेस पैलेट। री, ट, ठ, ड, ढ, अण, र, श। प्रोनाउंस करके देखो इसे। आपकी जो टिप ऑफ टंग है ना वो थोड़ी फोल्ड हो रही है और हार्ड पैलेट को टच कर रही है, राइट। तो दीज आर रिलेटेड टू हार्ड पैलेट, बट टंग का जो है वो मॉडिफिकेशन दोनों में अलग अलग है, ठीक है। तो ये है मूर्धा। नेक्स्ट इज दंत। दंत का क्या हो जाएगा? प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ टीथ, है ना, दंत टीथ। तो रू, त, थ, द, ध, न, ल, स, ठीक है। आप इसे देखोगे तो आपकी पूरी टंग जो है वो फ्रंट जो टीथ है आपके, उसके बैक साइड में जो है वो टच हो रही है, राइट। ओष्ठ, ओष्ठ यानी कि क्या? लिप्स। तो लिप्स आर यूज्ड इन प्रोनाउंस, तो ठीक है, इन प्रोनाउंसिएशन। तो ऊ प, फ, ब, भ, म, ठीक है। इसको आप क्या करोगे? बिना लिप्स के यूज के आप नहीं प्रोनाउंस कर सकते, राइट। इसीलिए जो है वो ऐसे दिया जाता है ना कि मतलब हाँ प बोल के बताओ बिना लिप्स को टच किए, तो यही मतलब चैलेंजेस यही होते हैं, है ना। तो कंठ तालु, कंठ तालु का क्या मतलब हो गया? जो कंठ हमने पढ़ा वो भी, और तालु भी, ये दोनों साथ में यूज होंगे। कैसे? थ्रोट और पैलेट बोथ आर इंक्लूडेड। तो ए, तो उसमें जीभ का देख सकते हो, ए ए।
जीभ जो है वो देख सकते हो कि कहाँ पर टच हो रही है, और कंठ का तो यूज है ही। कंठ ओष्ठव, थ्रोट एंड लिप्स, ओष्ठ बोला हुआ है, थ्रोट एंड लिप्स, तो वो क्या हो गया, ओ औ। ठीक है, क्या है, ओ औ, क्या है, ओ औ। ठीक है। दंत ओष्ठव, यानी क्या, दंत और ओष्ठ का करना है, तो टीथ एंड लिप्स हेल्प्स टू स्पेल। ठीक है, जैसे कि वो, ये क्या होता है, सिर्फ एक ही, वकारस्य। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है, वो। ओके। इजी ट्रिक कैसे याद रखोगे इसको करने की, तो कंठ यानी मोस्ट ऑफ द वर्ण स्टार्टिंग फ्रॉम ए, जो कंठ के है ना वो मोस्ट ऑफ द है वो अ से ही स्टार्ट होते हैं। तालु के मोस्ट ऑफ द वर्ण स्टार्टिंग फ्रॉम ई, और मूर्धा के मोस्ट ऑफ वर्ण स्टार्टिंग फ्रॉम री। ठीक है। और देखो, दंत के मोस्ट ऑफ वर्ण जो है वो रू से स्टार्ट होता है, और ओष्ठ के जो है वो ऊ से स्टार्ट होता है। Additionally, some of the varnas are being pronounced by expelling air from nose, called anunasik, which we have studied before, right? What अंग, सॉरी, अंगणनम। ठीक है, यमंगणनम जो मैंने आपको बताया था, यमंगणनम आपको याद रखना है प्रत्याहार में, है ना। तो वो, और यमंगणनम यही था, यमंगणनम। ठीक है। अनुस्वार, अनुस्वार यानी कि जैसे अंकिता आपने बोला, तो ठीक है, तो अनुस्वार में अंग ऊपर आया, तो वो भी कहाँ से हो रहा है, नेजल उसका जो है वो यूज हो रहा है, ऑल्सो प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ नोज। फिर उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन, ये जो उच्चारण स्थान है। ठीक है। अब, सॉरी, उच्चारण स्थान मतलब ये हो गया बाह्य प्रयत्न। अब ये जो प्रयत्न है ना, प्रयत्न मतलब क्या हो गया, एफर्ट्स हो गए। प्रयत्न का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग मतलब होता है एफर्ट्स। नाउ एफर्ट्स फॉर व्हाट, एफर्ट्स फॉर प्रोनाउंसिएशन, एफर्ट्स फॉर व्हाट, एफर्ट्स फॉर प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। वो क्लासिफाई हो जाता है दो में, एक तो बाह्य में, फर्स्ट वन इज बाह्य, एंड देन सेकेंड वन इज अभ्यंतर, राइट। तो बाह्य और अभ्यंतर, इस तरीके से दो में जो है वो क्लासिफाइड हो जाता है, क्या, प्रयत्न। प्रयत्न फॉर व्हाट, प्रयत्न मीन्स एफर्ट्स, एफर्ट्स फॉर प्रोनाउंसिएशन। Different parts of mouth get involved when we pronounce certain Sanskrit varna. When we pronounce certain Sanskrit varna, that's called prayatna, right? बाह्य प्रयत्न describes efforts for mouth parts during pronunciation. बाह्य का मतलब जो आपको बाहर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, माउथ दिख रहा है, तो उसके जो एफर्ट्स होंगे वो बाह्य प्रयत्न। अब उसमें क्या क्या आते हैं, मेनली बाह्य प्रयत्न में और सब टाइप्स है, विच इज फर्स्ट स्पृष्ट, सेकेंड ईशतस्पृष्ट, थर्ड विवृत, फोर्थ स्पृष्ट विवृत, और ऊष्म। ठीक है। तो ये फिफ्थ आता है, ये एडिशनली नहीं आएगा, ये फिफ्थ जो है उसी में इंक्लूड किया हुआ होता है। ठीक है, तो ये उसमें नहीं आएगा। फर्स्ट इज स्पृष्ट। नाउ व्हाट इज स्पृष्ट, तो व्हेन एयर इज गेट obstructed completely then suddenly released from mouth, तो उसको हम बोलेंगे, उसमें क्या आएगा, क वर्ग। व्हाट इज क वर्ग, तो जो क ख ग घ ग पड़ा हुआ है ना, तो उसका जो क वर्ग होता है उसी की बात कर रहे हैं। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ठीक है, और प वर्ग, तो इन सब में क से म तक, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्वर, है ना, सॉरी, ओके, आई एम नॉट रिकॉलिंग द वर्ड राइट नाउ, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। वेन एयर गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड कंप्लीटली, ठीक है, इनमें क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन में ऑब्स्ट्रक्ट क, मतलब क रिलीज नहीं हो रही है ना, फिर बाद में क ऐसे रिलीज हो रहा, तो इस तरीके से एयर की जो मूवमेंट है उसको हमने यहाँ पर स्पृष्ट में क्लासिफाई किया है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि स्पृष्ट में क्या क्या आता है। ठीक है, ईशत स्पृष्ट, और हाँ, क ख ग घ लिख लेना, ठीक है। थोड़े जो बच्चों की वो बुक्स ले लेना, सेकंड थर्ड वालों की, और क ख ग घ याद कर लेना अच्छे से, लाइन से, सीरियल वाइज कंप्लीटली। When air stops for a while and then release gradually from mouth, ठीक है, तो यर अ lower, right? Vivruta, when air expelled out without any obstruction, so all the vowels are included as Vivruta, like a, I, E, O, as completely.
और हाँ, मुझे पता है कि इसके श्लोक यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पर श्लोक लिखने चाहिए। ईशत स्पृष्ट उष्मस्त ईशत विवृत स्वराणाम, ठीक है, विवृत स्वराणाम जो भी है, उष्माणाम, ठीक है। तो वो हम आगे वाले लेक्चर में कवर करने वाले हैं, तो रिलैक्स, आपका कुछ छूट नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। स्पृष्ट विवृत, व्हेन एयर फर्स्ट स्टॉप्स इन माउथ, ठीक है, एक्सपेल्ड आउट विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, तो ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या, ह, ठीक है। ह जो है वो स्पृष्ट और विवृत में आएगा। उष्म यानी कि क्या, मैंने आपको ये भी बताया जब क ख ग घ पढ़ा था कि कौन से इसको जो है वो ज्यादा आपको एफर्ट्स डालने का लग रहा है, तो ऊष्म में जो है वो ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं, इसीलिए इनको ऊष्मस्त वर्ण बोलते हैं, और य र ल व को अंतस्थ, ठीक है। ट्रिक टू रिमेम्बर, पृष्ठ में जो है वो माउथ इज कम्प्लीटली क्लोज ड्यूरिंग प्रोनाउंसिएशन, टंग इज स्लाइटली गेट इन टच, और ईशत विवृत में और विवृत में ओपन ड्यूरिंग प्रोनाउंसिएशन दीज वर्ड्स, ठीक है। लास्ट इज अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न यानी कि एफर्ट्स गोइंग ऑन इनसाइड योर माउथ, राइट, व्हेन प्रोनाउंसिएशन सर्टेन वर्ड्स, मेनली अल्प प्राण, ये भी सब डिवाइडेड है, एक दो महाप्राण, तीन घोष, चौथा अघोष, ठीक है, और एडिशनली अल्प प्राण महाप्राण, ये दो, ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। तो अल्प प्राण महाप्राण घोष घोष, ठीक है, और स्वराणाम वगैरह भी शायद इसमें आता है। देखो, व्हेन एयर इज यूज टू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो अ से औ तक पूरा, ठीक है, उसको यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, अ से औ तक। महाप्राण, व्हेन एयर इज बीइंग यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, प फ ब भ म। घोष, व्हेन एयर प्रोड्यूस नॉइज थ्रू आउट द वॉइस बॉक्स यूजिंग ड्यूरिंग पासिंग फ्रॉम थ्रोट, है ना, तो उसमें अच प्रत्याहार, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आई हैव टोल्ड यू अच प्रत्याहार क्या है, तो आपको ये लिख तो दिया है मैंने यहाँ पर, लेकिन फिर भी यू नीड टू रिकॉल इट, राइट। when does not produce any sound during passed from throat, तो ख छ ठ थ श श स, right। additionally, अल्प प्राण और महाप्राण commonly also known as प्राण, ठीक है, इसको प्राण भी बोलेंगे दो को collectively। घोष और अघोष इज also known as सघोष, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया हो चैप्टर यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या है इसमें, उच्चारण स्थान हमने पढ़े और प्रयत्न पढ़े, राइट। इसके श्लोक जो है वो नोट्स में वगैरह आ जाएंगे, या फिर कहीं से भी आपको ये मिल ही जाएगा, राइट, तो डोंट वरी अबाउट इट। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, थैंक यू, कीप स्टडिंग।